अक्सर स्टूडेंट्स को आइडिया क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी क्यू कार्ड के आइडिया को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मुझे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट लिखा कि मैम हमें कई बार आइडियाज़ डेवलप करने में प्रॉब्लम आती है। हम जनरली बात कर लेते हैं बट व्हेनेवर इट्स द थिंग अबाउट कि क्यू कार्ड के ऊपर कैसे बोलना है देन दे फाइंड डिफिकल्टी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं they also having the same complaint। जो मेरी रेगुलर क्लासेस में आते हैं they also having the same complaint कि मैम हमारे पास आइडिया नहीं होता। So in this video I'm bringing an idea for important क्यू कार्ड जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा कि हमें इस क्यू कार्ड के ऊपर कुछ आइडिया बताइए। So what the cue card is, describe a person who has influenced you to do something better in your life। Describe a person who has influenced you to do something better in your life। So watch this video till end because this is very important cue card for November 2023 speaking or further also। Watch this video till end and if you haven't subscribed my channel, subscribe it because you will be getting more valuable and latest information ahead related to IELTS। Hey everyone, my name is Sapna Dhamija, one of the IELTS experts at YIP platform, your IELTS partner platform for more than 17 years। So in this today video, I have brought idea related to very important cue card जो कि आपको November 2023 speaking में और further next few months speaking में भी पूछा जा सकता है। वो cue card है describe a person who has influenced you to do something better in your life। यहाँ पर इसके 4 बुलेट पॉइंट हैं। पहला बुलेट पॉइंट है who the person is, सेकेंड बुलेट है इसका how you know him or her and थर्ड बुलेट है what this person does and last है explain how this person influenced you to do something better in your life। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा कि मैम वी आर फाइंडिंग प्रॉब्लम कि इस पे आइडिया नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इसके ऊपर क्या आइडिया जनरेट कर सकते हैं। दिस इज अ पर्सन बेस्ड क्यू कार्ड। तो आप यहाँ पर किसी पर्सन से रिलेटेड बात करेंगे जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो इन्फ्लुएंस रहेगा। तो आप इंट्रोडक्शन में इन्फ्लुएंस के ऊपर ज़रूर बात करिएगा। एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड आप अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो कोट करेंगे। आप पर्सन के ऊपर बताने जा रहे हैं, आप किसी फ्रेंड के ऊपर बात कर सकते हैं, किसी भी टीचर या मेंटोर के ऊपर बात कर सकते हैं, आप किसी अपने रिलेटिव के ऊपर बात कर सकते हैं या फिर आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बता सकते हैं या फिर किसी भी अपने फैमिली मेम्बर जो आपके बहुत क्लोज बाय हैं आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। बट द कंडीशन इज दैट कि दैट पर्सन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। तो यहाँ पर जो मैं आइडिया प्रेजेंट करने वाली हूँ दैट इज रिलेटेड टू मदर कि मेरी मॉम ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कुछ अच्छा करने के लिए मेरी लाइफ में। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन में जो हमारा सेंट्रल आइडिया वो इन्फ्लुएंस के ऊपर रहेगा। पर्सन बेस्ड क्यू कार्ड है। यू विल से वेल आई हैव मेट मैनी इंडिविजुअल्स इन माई लाइफ पर्सनली and they have influenced me positively to do something better in my life। For example, I have met many of my teachers who have influenced me and some of my friends, they impacted me and some of my relatives also। But today here I would like to talk about my mother। She has influenced me to do something good, to do something better, to do something efficient in my life। So my mother name is Mrs. You will talk about the name of your mother। My mother name is XYZ and then you will talk about her appearance। आप उनकी appearance के ऊपर बताएं at least 2-3 lines and later on आप उनके traits के ऊपर बता सकते हैं। For example, you could say my mother is very conducive, very helpful and very emotional person। She ever ready to helps other people, ever ready to helps the needy people especially in the society and this quality or this trait really influenced me। Then later on how you know this person as you're talking about your mother। So यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि I know my mother since my childhood। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। Instead you will say she is my own, I'm happy to talk about her। क्योंकि आप अपनी मदर या अपने फादर के ऊपर या अपने ब्रदर या सिस्टर के ऊपर अगर आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं तो नो नीड टू टेल आई नो हिम या आई नो हर सिंस माई चाइल्डहुड। जब आप किसी को बहुत टाइम से जानते हैं देन यू कैन से आई नो दिस पर्सन फॉर मोर देन 5 years, आई नो दिस पर्सन सिंस माई चाइल्डहुड,
I know this person since my teenage. But आपकी आप मॉम या आपके फादर के ऊपर बात करें या अपने ब्रदर सिस्टर, तो दे आर योर ओन. तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं हाउ यू नो दिस पर्सन. वेल आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट दिस पर्सन बिकॉज शी इज माई ओन. तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अंडरस्टूड शी इज योर मदर, सो यू नो हर, राइट. देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो what he or she does. तो आप अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करती हैं. So if she is a homemaker, so you will say she is a homemaker, she does all the domestic duties at home. और अगर आपकी मॉम वर्किंग है, वो किसी प्रोफेशन में है, then you can say she is a working person, she is a working professional, she is working in a multinational company. As my mother, she was a principal of a school, so I would say she was the ex-principal of XYZ school, and she was a great principal. She was a very influential principal at that time when she was doing that work. In that tenure, in that period, she was a great principal. तो यहाँ पर आप उनके वर्क के बारे में बताएंगे. लेटर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा डिस्कस करना है, हाउ दिस पर्सन इन्फ्लुएंस यू टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ. यहाँ पर आप आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं. वेल, सिंस माई चाइल्डहुड माई मदर टोट मी और माई मदर इनकलकेटेड मैनी गुड हैबिट्स इन मी. शी इनकलकेटेड मैनी स्किल्स इन मी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि आपकी मदर ने आपको बहुत सारे सोशल स्किल्स सिखाए हैं. शी इनकलकेटेड मैनी सोशल स्किल्स. आपको कल्चरल वैल्यूज बताई हैं. तो आप यहाँ पर बहुत सारी बातें रख सकते हैं. शी इनकलकेटेड many cultural values, many social values, personal values, family values, spiritual values and behavior values. And because of this, she is my icon. वो मेरी icon है because she used to do the same things whatever she taught me. उन्होंने जो मुझे सिखाया वो वही सब चीज़ें करती थी मेरे सामने. Like उन्होंने मुझे सिखाया cultural values, ethical values, moral values and family values, spiritual values and behavior values के बारे में उन्होंने मुझे सिखाया. And what I am today, because if I am a good person, I am a very good human being. So what I am today, it's because of my mother, as she inculcated all these values in me. And she influenced me because she used to follow the same thing. She used to follow the same path. वो ये सब चीज़ें किया करती थी. और आप यहाँ पर एक फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, हर एक्शंस वर लाउडर देन हर वर्ड्स. हर एक्शंस वर लाउडर देन हर वर्ड्स. यानी कि जो वो बोला करती थी वो किया करती थी, यानी कि उनके एक्शंस जो है वो उनके वर्ड से ज़्यादा लाउडर होते थे. तो इन दिस वे शी इन्फ्लुएंस्ड मी एंड शी टॉट मी हाउ टू बी अ गुड इंडिविजुअल. इवन शी माउल्ड मी इनटू अ गुड पर्सन इन माई लाइफ. So I would say she is my icon, she is my role model. In this way, she has influenced me to do something better in my life, to do something positive or to do something for the betterment of the society. So in this way, if I am a good individual and I am a successful person, it's because of my mother, because she taught me all these things, and whatever she was doing, it influenced me a lot and I am following the same path. So in this way you can talk about ये सारी बातें आप इस क्यू कार्ड में लास्ट पार्ट में explain how this person influenced you to do something better in your life. यहाँ पर आप इतनी सारी वैल्यूज़ को अगर आप बताएंगे तो एग्जामिनर विल हैप्पी कि आपको काफ़ी आइडिया पता है एंड मोर ओवर आप बहुत सारा वोकेबलरी इसमें लगा रहे हैं, then you will definitely get good score. Hope this will be helpful. Thank you so much. Write me down in the comment if you want the answer of more cue cards.